کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ دونوں نایاب ہیں۔ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور جو مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں اس ذات پاک سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی رہتے ہیں۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے تو ڈھول بجانے والے بھی آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں، کیونکہ انسان اکتاتی بہت جلدی ہے۔ ہماری صفوں میں منافقوں کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ ان درختوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے محلے کی مسجد میں نیا جوتا پہن کر نہیں جا سکتے، اور تبلیغ کے لیے امریکہ اور یورپ تک جاتے ہیں کہ ہم جیسے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ میں نے سب تیر کھا کر دیکھے ہیں، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا تمہیں غیر لگے گی۔ بات کوئی نہیں مانتا بات کا برا، البتہ سب مان جاتے ہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ دنیا والے اب کے اچھے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، اب سے نہیں، یہی تلخ حقیقت ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں،
ताल्लुक निभाना बहुत बड़ा कमाल होता है। अगर आपने अपनी मौत आसान करनी हो तो दूसरों की जिंदगी आसान कर दो। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो मैं नसीब बदलने पर कादिर हूं। ऐसे शख्स के साथ रहो जो कहे कि मिलकर कोई हल निकालते हैं। हम अपना रिश्ता नहीं खो सकते, ना कि ऐसे शख्स के साथ जो कहे तुम्हारी मर्जी। इंसान को सांप डसे तो इंसान मर जाता है। इंसान को इंसान डसे तो वो ना मर सकता है और ना ही जिंदा रह सकता है। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। फूल गवाह हैं अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और एक मासूम को दिया गया धोखा आपकी बर्बादी के तमाम दरवाजे खोल देता है। फिर आप चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, दिलों पर राज हमेशा सच्चाई करती है। दिखावे नहीं, जहां भी रहे मुखलिस रहे। अगर आप तन्हा हो तो काबिल रश्क हो, क्योंकि तन्हाई बेहतर है। ऐसे अपनों से जो पिल में पराया कर दे, ऐसे दोस्तों से जो आपको समझ ना सके, और ऐसी मोहब्बत से जो रुस्वा कर दे। तो ए तन्हाई से उकताए हुए इंसान सुनो कि तुम काबिल रश्क हो। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दें, तब भी वो आपके जज्बात को अब से बेहतर जानता है। एक अरबी कहावत है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम्हें दिल की खुशी सिर्फ लोगों से आप नहीं जानते कि इस वक्त आपके सब्र से कौन कौन से अजर तैयार हो रहे हैं। अल्लाह आंखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। इब्लीस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था, और हमारा रवैया ये है हम शर्मिंदा होने वालों को ऐसा जलील करते हैं कि वो फिर से इब्लीस बन जाते हैं। लोगों को ऐसी बातें और अमाल बताओ जिनसे इनको जन्नत हासिल करने में आसानी हो। हमें एक हाथ की जरूरत नहीं होती जो हमें पकड़ ले, सिर्फ एक दिल की जरूरत होती है जो हमें समझ ले। हम समंदर की तरह ज़र्फ वसी रखते हैं। दिल में तूफान हो तो चेहरे पे सुकून रहता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ से है। दुनिया को अल्लाह की रजा से सरोकार नहीं होता, ना अल्लाह के हुक्म से दुनिया अपने वाहमों और रिवाजों पर चलती है। आसमान पर निगाह जरूर रखो, मगर यह मत भूलो कि पांव जमीन पर ही रखे जाते हैं। अगरचे समंदर में घर आई होती है, लेकिन दिल का साहिल सबसे ज्यादा घिरा है। सच को दलीलों की जरूरत नहीं होती। जो लोग हक पर होते हैं वो सफाइयां पेश नहीं करते। किसी इंसान में खूबी देखो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहां तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। इन लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करें जिनके दिल खालिस और गुफ्तगू नर्म हो। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। देखना जल्द ही अल्लाह ताला आपकी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। औरत कभी 2 टके की नहीं होती। माँ जन्नत, बहन इज्जत, बेटी रहमत और बीवी हमसफर होती है। अखलाक यह है कि अल्लाह की रजा के लिए अपने मिजाज को बद अखलाक ना होने दें। वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर इस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफें कभी भी नहीं भलाई जा सकती। दिल का हर हाल में अल्लाह से राजी रहना ही अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। बाबा जान कहते हैं, बेटा, बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौके परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। कौन कहता है अल्लाह नजर नहीं आता? एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता।
किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। वक्त के लामहदूद खजानों से हमें चंद महदूद अयाम मिलते हैं। हम इस वक्त को जिंदगी कहते हैं। जानते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी अजियत क्या है? जब ये पता ना हो कि इंतजार करना चाहिए या भूल जाना चाहिए। बगैर जदोजहद के उम्मीदें रखना बेवकूफ़ी है। मर्द और औरत की फितरत में एक वाज़ेह फ़र्क है। मर्द को हर औरत अपना बना सकती है, पर औरत को हर मर्द अपना नहीं बना सकता। किसी को मुआफ़ करके अच्छे बन जाओ, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना बनना। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो इसमें रहने के लिए अब खुद को थका रहे हैं। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है। और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है? परेशानियां झेलने के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। मोहब्बत देख ली हमने जमाने भर के लोगों की। जहां कुछ दाम ज्यादा हो वहां इंसान बिकते हैं। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है इसे तकदीर पर छोड़ दो, और तकदीर बदलने के लिए दुआ है। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। जिंदगी का हर वो लम्हा जो सजदा करना सिखा दे, हर वो दर्द जो अल्लाह के आगे रोना सिखा दे, हर वो आजमाइश जो अल्लाह के करीब और दुनिया से दूर कर दे, यकीन जाने अब पर अल्लाह की अता है, फजल है, नेमत है। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाह से बचने में आसानी होगी। दीन की खातिर अल्लाह हमें इस्तिकामत का पहाड़ बनाए, आमीन। आज नसीहत की बातों को मान लो, कल पर सुकून जिंदगी के मालिक बन जाओगे। ये दिल का मारना तो नए दिल की बुनियाद है। ये ख्वाहिशों का छोड़ना तो नई मंजिलों की नवीद है। आखिरी जमानों में 3 चीजें कम ही मिलेगी। सच्चा दोस्त के जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुद्ध दरहम, किसी ताकतवर के मुंह पे हक बात कह देना। थी इस कदर अजीब मुसाफत के कुछ ना पूछ, आंखें अभी सफर में थीं और ख्वाब थक गए। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूं, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। शुक्र की बेहतरीन तारीफ यह है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह ही के कामों में लगाया जाए, और नाशुक्री का असली मफहूम यही है कि अल्लाह के दिए हुए नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में सिर्फ किया जाए। खामोशी बेहतरीन हथियार है, खास तौर पर उस वक्त जब लोग अब से चीखने की तवक्को करें। इस बात में कोई शक नहीं, सब मजबूर हैं, फकीर हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। दुनिया एक मुसाफिरखाना है, यहां कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आया। इंसान को सबसे बड़ा खतरा इसके अपने नफस से है। इल्म हासिल करो तो बहादुरी भी सीखो, वरना डर तुम्हें हक कहने से रोक देगा। सच्चाई यही है कि आज के बच्चे इसी खाई में डूबते जा रहे हैं। हम अपनी गलतियों से ज्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। सिवाय सब्र के कुछ भी तो मेरे बस में ना था, 100 जितना हो सका परवरदिगार मैंने किया। इंसान वहां जिद करता है जहां इसको मान होता है। इसकी जिद रद्द नहीं होगी, मान खत्म, आवाज खत्म, अल्फाज खत्म। फासले इंसान को दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। ये लफ्ज भी कितने बाकमाल होते हैं, अनजाने इन देखे लोगों को दिल में उतार देते हैं, और बरसों की पहचान रखने वालों को दिल से उतार देते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा इंसान के सामने बोलते हैं। आसमान में उड़ने वाले जरा ये खबर भी रख, जन्नत पहुंचने का रास्ता मिट्टी से ही गुजरता है। शुक्र अदा करते रहा करो इस अल्लाह का जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज्यादा सिख जरूर देता है।
सब कुछ मुयस्सर होना जिंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है इस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना जिंदगी है। जब लोग तुम्हें तोड़ दें तो अपने टुकड़े लेकर रब के पास चले जाओ, वो तुम्हें जोड़ देगा। हर चीज हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीजें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। हम सब ही एक ऐसे मेहरबान के मुतलाशी हैं। जब हम मुस्कुराएं तो वो अंदर झांके और पूछे, उदास क्यों हो? बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, तुम उसे जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें इतनी ही तकलीफ देंगे। कभी कभार सिर्फ दुआ चाहिए होती है। दिल इतना उदास होता है कि जी चाहता है कायनात की हर चीज हमारे लिए दुआ करे। अगर इंसानों पर गुजरने वाली कैफियत उनके दिल के बजाय माथे पर लिखी होती तो तुम जिनसे हसद करते हो उन पर तुम्हें रहम आता। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश न करो, तुम्हारे लिए यही काफी है कि इसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। कुर्बानियां वहां दीजिए जहां उनकी जरूरत हो। दिन के वक्त दिया जलाने से दिया ही खत्म होगा, अंधेरा नहीं। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। खुशियां बांटने ही से भी खुशी हासिल होती है। बेहतरीन सुबह वही है जो अपने रब के नाम से शुरू की जाए। जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए वही जिंदगी कारामद है। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने से खफा होता है। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी तुम्हारे अंधेरे बांटे थे। जिंदगी में बाज दफा कुछ लोगों को बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन इंसान नहीं कह सकता। 100 लिहाज होते हैं जिनको रखना पड़ता है और रखना चाहिए। यकीन रखो उसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे। ये जो तकलीफ के दिन हैं, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। तख्लीक किसी भी सिन्फ की हो शफाफ दिल पर उतरती है। कामयाबी किसी भी दर्जे की हो मुसलसल जद-ओ-जहद से मलती है। जिंदगी में 2 नसीहतों पर जरूर अमल करना। 1, कभी बदनजरी न करना। 2, कभी मायूस न होना। अखलाक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। इंसान के कुछ साथी भी हैं और कुछ दुश्मन भी, लेकिन इसे अपने आप को कामयाब बनाने की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। जो मोहब्बत करते हैं वो वक्त साथ नहीं गुजारते, बल्कि जिंदगी साथ गुजारते हैं। अपनी जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। तालीम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं, मालूम नहीं मतलब अल्फाज रट रहे हैं। इंसान को हिदायत खुद तलाश करके, अक्ल को इस्तेमाल करके, कुरान को रूह से जोड़कर हिदायत तक आना होता है। जिंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते, बस कोई ऐसा वरक सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कीजिए। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। जिंदगी की किताब में सरवरक का पहला लफ्ज एहसास है। जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग पर सुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की है। रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेते हैं। कुछ लोग इतने खास होते हैं कि उनसे 5 मिनट की गुफ्तगू हमारे चेहरे पर रहने वाली 24 घंटे की मुस्कुराहट का सबब बनती है। आपके अर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझी कि ये इसकी आजमाइश है। ये आपकी भी आजमाइश है। हर काम के लिए अल्लाह का हुक्म जरूरी है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। हमें इतना तो मजबूत होना ही चाहिए कि किसी इंसान को लफ्जों से हमारा सुकून छीनने का इख्तियार ना हो सकता है अब सितारों की तमन्ना करें, लेकिन अल्लाह आपको चांद से नवाजना चाहता हो। सब्र इख्तियार करना बहुत खूबसूरत है, ना चाहो तो भी मिल ही जाता है। दुनिया में धोखे उरूज पर है। गलत फहमी थी कि सब अपने हैं, मोड़कर देखा तो साया हम सफर निकला।
دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔